All right, great. Last time we done strategic. Yes. And स्ट्रेटेजिक डिसीजन decision मेकिंग making. वो लास्ट टाइम जो यहाँ पे हमने वो किया था. And so today we have two more topics to cover. One is strategic direction. So decision making और direction में अंतर आपको समझ आएगा, right? The problem with English, of course, is that very many words seem very similar to each other. So, but many of you have done your landmark. तो सबने किया हुआ landmark? मिस्टर नहीं, मनीष मैंने नहीं प्रधान किया। आपने सर नहीं लैंडमार्क ने मिस्टर मनीष प्रधान ए प्लीज यार नहीं किया सर मैंने। नहीं किया। मेरे को करना चाहिए एक बार करना landmark। चाहिए, करूँगा। अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो उसमें एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलता, although I only did the forum, I could not do the follow-up sessions, पैसे दे के नहीं कर पाया, but the coach used a word called distinction. डिस्टिंक्शन Yes. That's a very powerful word. So, and distinction is not necessarily with respect to something else. It's with respect to itself. कि एक टॉपिक को अगर आप सही तरीके से समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, उसकी डेप्थ को आप अप्रिशिएट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. तो जब कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बोलता है तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, राइट? एंड वो नहीं है जो आप कई बार सोच रहे हो. जैसे लास्ट जब आपने सेशन अटेंड किया था वो ऑनलाइन वाला, you were thinking about a topic in a particular way, but through your questions we could clarify and say that कि distinction थोड़ी सी different है. राइट Right? जैसा आप सोच रहे हो वो नहीं है, कोई और टॉपिक है. जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक है, बट ये टॉपिक अलग है. Right? So it's very important to be able to appreciate these management concepts, not only because आपको आने चाहिए ये ताकि आप अपने बिजनेस में यूज़ कर पाओ, but also because at some point in time you're going to be training your own people, right? जब आप strategic direction की बात करोगे, strategic planning की बात करोगे, तो narrative जो अगर भाषा सेम हो, अगर आपने नोटिस किया हो, तो काम जल्दी हो जाते हैं, है ना? जैसे आप फ्रांस में गए, रेस्टोरेंट में बैठे, वैसे ही लोगों को इंग्लिश बोलनी बड़ी गंदी लगती है वहाँ पे, so they hate English people, राइट so ऊपर से आप इंडियन, right? So worst of both combos. But if you knew how to speak French, suddenly काम हो जाएगा. जो आपको खाना है वही मिलेगा, नहीं तो कुछ और आ जाएगा, right? राइट So it's important to have a common shared language, and management की भी अपनी एक language होती है. तो instead of despising it, saying कि ये jargon है, ये है, वो है, सब एक ही है, कई बार हम ऐसी बातें करते हैं, राइट? कि कोई विजन बोलता है, कोई ये बोलता है, तो उससे बेटर ये कि समझ आए कि विजन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, राइट? सो इट्स बेटर टू बी एबल टू अप्रिशिएट दिस लैंग्वेज इफ यू हैव चोजन टू बी इन दिस लाइन ऑफ वर्क. It's almost like a chef needs to know his language of how to talk about food, right? Okay, great. So today we have two topics to cover. One is strategic direction, and the second is strategic risk management. Both are very critical leadership competencies, right? तो इनकी distinction पे हम again समय बिताएंगे. स्ट्रेटजी डायरेक्शन आर्ट Strategic risk management. So we're starting with strategic direction. हाँ, तो ये obviously ये ठीक से लोड बहुत अच्छे से नहीं हुआ, but this slide will tell you कि ये जो चीज़ें बोल्ड में हैं मैं बता देता हूँ. 2 बोल्ड में है, 3 बोल्ड में है, 6 बोल्ड में है, 1 2 3 यहाँ पे बोल्ड में है, फर्स्ट ये बोल्ड में है, एंड ये आज हम कर रहे हैं और इस सेशन के बाद ये करेंगे. Rest of the topics still remain to be done, which is what we are planning. So 9 topics after today, and एक सेशन ऐसा हुआ था जिसमें हम एक ही टॉपिक कर पाए थे, काफ़ी इमोशनल हो गए थे सारे, तो 2 टॉपिक करने थे, but we could only do 1. So we'll cover it up with an extra session. ठीक है. So let's understand what do we really mean by strategic direction. And as you know, each time we cover one leader, one inspirational guy who's maybe demonstrated these kind of competences in a better way than most other people do. So इसको समझते हैं. Strategic direction होता क्या है? I think the qualifying word in this phrase is direction, right? And जब आप कहीं जा रहे हो, मान लो चंडीगढ़ के रास्ते पे ही हो,
right? तो you're in the direction of reaching चंडीगढ़, right? ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक डिग्री भी टर्न कर जाओ तो it takes उस समय तो नहीं पता चलता है कहाँ जा रहे हो आप, Yeah. राइट? बट जरा सी डायरेक्शन चेंज होने से लग रहा है भाई छोटा सी तो चीज़ चेंज करी है काम में, कोई इतना बड़ा तो कुछ किया नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, राइट? बाय मेकिंग दोज वेरी स्मॉल चॉइसेस which can dramatically impact your future, right? Future is what you have decided, maybe a vision that you have set for yourself, a goal that you have set कि चंडीगढ़ जाना है या कहीं भी जाना है। आप कोई एक स्ट्रेटजी भी डिसाइड करते हो कि अगले 5 साल में हम ये चीज़ें कर डालेंगे, बट डायरेक्शन इज़ वेरी हियर एंड नाउ। यू हैव टू टेक डिसीजंस राइट नाउ कि आर यू इन द राइट डायरेक्शन। सो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को समझने के लिए डायरेक्शन वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे कि आप क्या सही रास्ते पे हो। सही रास्ता कौन सा रास्ता? जो रास्ता आप सेट कर चुके हो, नहीं किया तो पहले वो काम कर लेते हैं, राइट? सो इफ़ यू हैवंट इवन डिसाइडेड वेयर यू आर हेडेड, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कि आपने कोई डिसीजंस ही नहीं लिए। तो डेस्टिनेशन भी तो है, स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन की पहुंचना कहाँ है। वही स्ट्रेटेजिक उसके बाद डिसीजन से- मेकिंग इज गोल, डेस्टिनेशन इज वेयर यू वांट टू बी। Setting the trajectory. Where to go. आपको अमेरिका जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कहीं भी जाना है, राइट? तो ये आपने डिसाइड कर लिया, ये आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपने ले लिया कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ मुझे पहुँचना है और अगले 3 साल के बाद पहुँचना है वहाँ। कुछ काम करने के लिए जाना है ऑब्वियसली, और इट कुड बी जस्ट अ वेकेशन, दैट कैन ऑल्सो बी अ गोल, राइट? सो उसके बाद आप डे टू डे बेसिस पे कुछ प्लानिंग करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि सीधा 3 साल के बाद उठोगे और कहोगे फ्लाइट पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। सो यू क्रिएट अ प्लान, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्ट्रेटेजिक प्लान, राइट? इफ द डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर, यू कांट बिल्ड अ प्लान। तो जिसको हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कहते हैं, राइट, या विजन कहते हैं, विजन उससे भी आगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से भी आगे और एम्बिगुअस है, राइट? बट बहुत दूर की सोच रहे हैं हम, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचना स्टेप नंबर 1 है। बट एक बार आपने मान लो सोच लिया, अगर आपने सोचा ही नहीं है तो आई अंडरस्टैंड कि देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग डायरेक्शन, राइट? अगर पता ही नहीं कहाँ जाना है तो डायरेक्शन का भी क्या महत्व है फिर? लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, हाउ डज इट मैटर, राइट? बट अगर सोच लिया है कि कहाँ जाना है, then I think there is one part of the problem is solved. Then the second part of the problem starts, right? कि do I have a plan to get there? The topic of strategic direction is about appreciating the importance of a plan and how these strategic plans are created so that they keep you on track. एंड जब भी आप प्लान से थोड़ा सा डेविएट होते हो, अगर छोटा सा भी डेविएशन कंसिस्टेंटली होता गया तो कहीं और पहुंच जाओगे, अमेरिका की जगह चाइना पहुंच जाओगे, राइट? तो कई बार हम इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं ना, किस्मत में था चाइना आना, चलो चाइना आ गए, ठीक है, अब यहीं कुछ कर लेते हैं। सो वी ऑब्वियसली डिपेंड अ लॉट ऑन आवर डेस्टिनी, राइट? बट इट्स ओके टू बी समटाइम्स बी इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। अब पॉइंट ये आता है कि कई बार हमें छोटे छोटे मूवमेंट्स करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। अगर आपने नोटिस किया हो, आपको जाना है कहीं बट कोविड आ गया बीच में। जैसे हमारा सेशन जनवरी में शेड्यूल था, तो योर ट्रेनर फेल इल, फरवरी में नोबडी वांटेड टू मीट, सो मे बी जूम पे कोई करना नहीं चाहता था। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपना एंड गोल चेंज कर दिया, राइट? वी ओनली मॉडिफाइड द पाथ अ लिटिल बिट एंड देन केम बैक ऑन ट्रैक। And you would also realize that in your decision making process, you made a few different plans. Jैसे earlier you were doing your sessions at Crown Plaza. Now you felt, okay, that's not available, can we move to Taj? Right. It hasn't changed your end objective. Friday to Wednesday. Friday to Wednesday is not changing your end objective, but plans change हो रहे हैं, Plans. है ना? छोटी छोटी directions modify हो रही हैं, but destination change नहीं हो रही, course हमें complete करना Fine-tune हो है। रही है. 9 महीने में पहले पैदा करना था बच्चा, अब 11 में होगा, राइट? इतना फर्क जरूर आएगा, बट हो जाएगा, राइट।
Right? You haven't changed your strategic objective. End goal नहीं आपने change किया. End goal होता कि आप कहते 3-4 सेशन के बाद हमें पढ़ना ही नहीं है. इससे बेटर कोई और टॉपिक पढ़ते हैं. What's next? Right? बीच में ही छोड़ दिया. ऐसा भी कई बार करना पड़ता है. You have to sometimes dump your strategies and create totally new strategies. But that should not be something you do every day, every Dump your time. strategy, Once in a dump your while. destination. हाँ जी. Dump your destination or strategy? वही strategies का मतलब ही यही है. What is your strategy is basically asking you, in other words, what is your destination? Strategy is a way to achieve the destination. Depends on how you want to treat it. Strategic plans get you there. Right? So when I ask this question, what is your corporate strategy? So it should have some very specific 3 or 4 answers, Which is the goals. which could be things like which products you would want to be a market leader in, right? So that could be labeled as a destination. Now you decide that कि इस particular product में मुझे market leader बनना है. It's a strategy. Now you've made your corporate strategic choices कि मुझे ये करना है. You made this decision. Question is how do you get there? उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम करना होता है. उनको हम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कहते हैं. तो स्ट्रेटेजी वर्ड थोड़ा सा ना जार्गनिश है, एंड यू आर नॉट द ओनली वंस हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट. बट लाइक आई ऑलवेज से, स्टिक टू द स्पिरिट ऑफ द वर्ड्स, एंड आई थिंक यूल बी एबल टू बेटर यूज देम. Right. The important thing is end destinations, end goals have to be very sharply defined. I feel every business must have some end goal in mind. You know, कि 5 years में आप क्या accomplish करना चाहेंगे. If you can, think about 10 years. People like Elon Musk will think about 25-30 years. वो जो SoftBank का जो CEO है, the Japanese guy, he will think 100 years. Beyond himself. If you look at his presentations, the way they share, वो ऐसा लगता है कि कोई ट्रिप पे था जिसने वो बनाई है प्रेजेंटेशन. सीरियसली. बट उसको मिलती है $multi-billion फंडिंग उसको. रियली कह रहा हूँ. So अभी ना forward दुबई looking. में आई वाज विजिटिंग दुबई, तो दुबई फ्रेम करके उनका अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन. सो व्हेन यू वॉक आउट, सो देयर इज अ 3D रूम जिसमें 3D प्रोजेक्शन होती है. उसमें दे शो दुबई ऑफ कौन से साल का पता नहीं, बट दे हैव डिफरेंट इमेजिनेशन ऑलटुगेदर. It's an इट्स imagination. लाइक अ वीडियो गेम. Virtual. इट्स अ इमेजिनरी वर्ल्ड विद दे एनविजन की कभी रियलिटी बनेगी. Yeah. But we also know, no, I think many of you have learned about these principles called visualization. And Yes. But if you can't imagine, it can never be It real. can never be real. Right. So we are scared of imagining. Hmm. हमें लगता है कि क्या फ़ायदा. यहाँ तो scared है, यहाँ लगता है कि इसका क्या फ़ायदा. Right. We find it very difficult to step out of our comfort zone of the day-to-day challenges of work. You know, so हम उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा emphasis देते हैं. Bird in hand is worth two in the bush. Now that is a different concept. It needs to be applied where it needs to be applied. But it cannot replace the role of a strategy. Right? So there is goal and then there is a plan to achieve the goal. So how do you connect direction and plan? That's what we will talk. That's exactly the topic today. Okay. Strategy. Right. Direction is more towards how, no? How you do it. So direction तो दिशा है ना, मतलब a plan, मतलब direction पे रहने के लिए आपको एक plan चाहिए. Right. So that you are on the right track. So is it like a triage? Like, wo, to be sure you are in the right direction. So all decisions have to go through that triage की. ये कुछ मैट्रिक्स टाइप बता रहे हो आप कुछ. It's like अंधेरे रूम में एक टॉर्च चलाई है और वो जो टॉर्च की जो लाइट बीम जा रही है ना, that is the what you are saying right. It might make you feel that is the right direction. But just because you flash the torch in a direction doesn't mean it's the right direction. Right. And when we freeze that, yeah, this is now where I want to go. This is the door. Then that is the path. So let's come to it. So I think these are the kind of issues we are looking to address today. Okay. So strategic direction is about setting the right direction towards achieving the organization's vision and long-term goals.
Why we call it strategic direction? क्योंकि हम थोड़ा दूर के बारे में सोच रहे हैं. But strategy से भी पहले कुछ चीज़ें होती हैं, which is tactics, right? Things which you do on a day-to-day basis. And we'll also discuss about the role of tactics, because none of these concepts are in isolation, right? So this is essentially a path set out for the organization based on your vision, mission, values, and the different kind of strategies जो आप दीपांकर strategies बोल रहे थे. तो strategy और strategies का मतलब में बहुत अंतर है. Okay. Right? So strategies जब हम word use करते हैं So that's the path. तो it becomes क्या क्या तरकीबें हैं आपके पास. But when I talk about strategy without the IES, it becomes more absolute, more long term. What is my long term strategy? So Geo strategy is to be data leader, and strategies are give it free. I mean, Can strategies be- are many things. There Many could be things, 20 but strategies to get there. To get to the strategy. Yes. Yeah. So we'll come to describing some of these ideas in more detail. But as leaders and organizations move down the path of strategic direction, it provides guidelines for decision making, allows adaptability, and enables everyone to be on the same page if it is communicated well. So with the strategic direction, the organization has many answers. कि हमारे objectives क्या हैं, वो कैसे accomplish होंगे, किस type के resources हमें चाहिए होंगे, how should we work. So इस type की deliberations होनी शुरू हो जाती हैं whenever you talk about strategic direction. And because it's direction, so you have to keep asking yourself, are we in the right direction? Are we on the path that we had set out to achieve? Right. And आज हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात हो रही थी आपके साथ. So अगर देखा जाए तो you could set a goal for yourself कि under all conditions after 9 months I want to be cash flow positive. So it's a short term strategy. Right. अब उसके लिए आप बहुत सारे एक्शन स्टेप्स डिफाइन करोगे, उसका प्लान बनाना शुरू करोगे, कैसे काम करोगे, फिर आप उसे वीकली रिव्यू करोगे जो हम बात कर रहे थे, ताकि 9 महीने के बाद जो गोल सेट किया था वो अचीव हो जाए. Why that weekly review becomes critical? To make sure that are you on track? Right? जैसे हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, गूगल मैप ऑन करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी नज़र वहाँ देख लेते हैं. 15-20 मिनट के बाद आप दोबारा चेक कर लेते हो कि अभी भी ट्रैक पे ही है या कुछ चेंज हो गया. और कई बार आप रियल टाइम डिसीजंस अपने लेते हो कि ये सडनली ये ट्रैफिक आ गया यहाँ पे, टोटली अनएक्सपेक्टेड था. नाउ आई हैव अ चॉइस, शुड आई टर्न लेफ्ट राइट और इसी रास्ते पे चलूँगा. ऐसा बहुत बार होता है. But these are smaller decisions, not so complex. But imagine if the same decisions have to be taken with respect to your business, without changing your end destination. Right? So this is assuming that you don't change your end destination. अगर आपको कैश फ्लो पॉजिटिव होना है 9 महीने के बाद, तो वो होना है फिर. Then determining action steps is very, very critical. Then reviewing the direction, are we on that path, are we on that path, are we on that path. थोड़ा सा डिवीजन है, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यूक्रेन रशिया वॉर होगी, थोड़ा डिले हो गया. राइट. हमारा रशिया का सप्लायर था तो माल आना बंद हो गया. ठीक है. या हमने रशिया को सप्लाई किया था तो पैसे आने बंद हो गए. तो थिंग्स कैन चेंज. राइट. बट द लॉन्ग टर्म प्लान कांट चेंज. आई मीन वट एवर यूर प्लानिंग टू अकम्प्लिश. The primary tool for defining an organization's strategic direction, track पे रहने के लिए, it's all about staying on track. This conversation is about staying on track. To stay on the track, the most useful tool is strategic planning. If you don't have a plan of how you're going to get where you want to go, it is obvious that it's very difficult to stay on track. तो आपको intuitively track पे रहना पड़ेगा.
without a plan. Right? So अगर मैं basic steps दूँ आपको, trying to maybe use lesser jargon for you, कि एक आपका end goal है जहाँ आपको पहुँचना है. ठीक है? You want to reach here. Thank you. तो एक तरीका काम करने का है कि रोज सुबह उठते हैं और काम करना शुरू करते हैं. The second method is asking your team, do you have a plan? How will you get here? And chances are, the first set of answers that you're going to get are really weird and absurd. Because nobody has thought about it. Including us. Yeah. ऐसा होता है, right? We are, I think as human beings, we tend to be very optimistic about our goals. हमें लगता है ये तो अचीव हो जाएगा, बस सोच लिया तो अब हो जाएगा. हो जाएगा. राइट. सिर्फ सोचने से नहीं होता. सोचना भी इम्पोर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग सोचना ज़रूरी नहीं है या विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है, वो सब ठीक है. बट यू मस्ट हैव अ प्लान. यू मस्ट नो हाउ यू गोइंग टू गेट देयर. राइट. एंड आपने ये वर्ड कभी सुना होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. राइट. सो यू मस्ट हैव अ प्लान ए टू स्टार्ट विद. If you have no plan, then there is a very big problem. Right? So बीच में बहुत सारी situations आ जाती हैं, right? तो इसलिए आप प्लान ए से प्लान बी की तरफ चले जाते हो. फिर कई बार प्लान बी भी वर्क नहीं करता तो सी की तरफ चले जाते हो. But you don't change your goal. That you keep intact. I think it's okay. No, that's fine. You can leave it here. Thank you very much. The point here is, all these plans are necessary to ensure that your direction is right. मतलब अगर आप डायरेक्शन के लेंस से देखो तो ये बिल्कुल ये सीधी लाइन खींच रही है गोल की तरफ. कि मैंने गोल डिसाइड किया, भागना शुरू कर दिया. So running without a plan would mean that likelihood of my stumbling multiple times is very, very high. And it's also quite possible that I never reach the goal. Right. But if I can start creating plans, तो हो सकता है कि पहले मैं ऐसे जाऊं तो यहाँ पहुंचूं, हो सकता है कि सीधा ही पहुंच जाऊं, हो सकता है यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंचूं, but पहुंच जाऊंगा. हाँ जी. डायरेक्शन ठीक है बट प्लान नहीं है. हाँ. तो How will you know कि डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे ठीक है बिना प्लान? That is the problem. Objective है ना उसमें. No, I understand. मैं वही कहना चाह रहा हूँ. Suppose if things are moving very fast. Yes. In our case, and new things keep coming up and keep Too many surprising ideas. us. हाँ. So अभी जो प्लान करा है, मतलब वो जो आप कह रहे हो कि ट्रैफिक आ गया तो डायरेक्शन, बट डायरेक्शन वही है. So certain times you are just going with the flow, but overall when you look at yourself, you feel कि ठीक डायरेक्शन में जा रहा है. वो ना आप इंट्यूटिवली वर्क कर रहे हो. एंड आई नो द कॉन्टेक्स्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट एजिलिटी. दैट इज वाई अभी हमारी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है. तो क्योंकि एग्जैक्टली यही मुझे भी लग रहा है कि फ्लो में बहते जा रहे हो आप. वो आप इसलिए बहते जा रहे हो बिकॉज अभी लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है. सो देयर इज दिस इनर कॉन्फिडेंस दैट बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो इट्स ओके टू गो विद द फ्लो. इंट्यूशन है, गट है. लेट्स जस्ट से कि टाइमिंग अच्छी है, कि सब चीज़ें ट्रैक पे आए. मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जब सितारे सब मिल जाते हैं तो सब कुछ ट्रैक पे होता है. इकोसिस्टम भी है, सब कुछ है. ठीक है. इकोसिस्टम, यू हैव टेकन सर्टेन स्टेप्स जो सब चीज़ें अलाइन हो रही हैं. राइट. दैट्स व्हाई इट डजंट बॉदर यू मच राइट नाउ. बट गोइंग विद द फ्लो इज नॉट अ प्लान. It's not the plan. Well, that's what Yes. is the realization. Yes. Because the risk with that is
the risk of creating a bubble. ये भी ऐसा हो रहा है, नहीं है ये भी हो कि रहा है। देयर इज नो प्लान, बट उतना डिटेल्ड नहीं, मतलब इस साल का क्या क्या करना है, एक्टिविटीज वी हैव, यू नो, सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू डू, बट अगेन जो प्लान किया हुआ है वो उससे जल्दी भी हो रही हैं चीज़ें, या वो सोचा था कि ये करेंगे बट एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई विच वी नेवर थॉट ऑफ। which ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप प्लान बनाते हैं समटाइम्स यू मूव मच फास्टर देन दैट, कई बार ऐसा भी होता है आप प्लान बनाते हैं उससे यू मूव मच स्लोअर देन दैट, राइट? बट इफ यू डोंट क्रिएट अ प्लान यू आल्सो डोंट इम्प्रूव योर प्रेडिक्टेबिलिटी। तब जैसे अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, राइट? यू कैन क्रिएट योर टेम्पलेट्स, फ्रेमवर्क्स एंड स्टार्ट डूइंग योर रिव्यूज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, बट रिजल्ट्स विल ओनली स्टार्ट टू कम आफ्टर 3 to 4 months। उसका रीज़न ये है क्योंकि प्लानिंग कभी की नहीं, रिव्यू कभी किया नहीं, तो प्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी पुअर है। प्लान का मतलब क्या है? प्लान वर्सेस एक्चुअल हम देखते हैं ना, ये प्लान किया था लेकिन एक्चुअल कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दोबारा ट्राई करते हैं। फिर प्लान किया, अब टैसिट नॉलेज है, लास्ट वीक का ज्ञान दिमाग में आ गया। फिर प्लान किया, एक्चुअल अभी भी दूर है। ओके, लेट्स लर्न फ्रॉम द मिस्टेक वी मेड इन प्लानिंग। सेम थिंग विद सेल्स प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वेरी पुअर इन सेल्स प्लानिंग, या तो वो वही बोलते हैं कि वी आर गोइंग विद द फ्लो, सब ठीक ही चल रहा है, क्या करना है। सर एक्चुअली प्रॉफिट आता रहता है ना, तो वो तो चल hurt रहा है, नहीं चल रहा है, करता। तो हर्ट नहीं करता, तब तक हर्ट नहीं। एंड यू डोंट रियलाइज कब वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाता है। और व्हाट इफ यू कुड अर्न मच मोर प्रॉफिट्स देन व्हाट यू आर Exactly, अर्निंग। हाँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो पता ऑफ ही नहीं नॉट होती है। प्लानिंग इज Who मच are you हायर। accountable to for your वी आर own नॉट plan? अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर नॉट, आपके ऊपर कोई सीईओ नहीं बैठा है जो आपसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द So प्लान? that is another thing, you know, Yeah, ये not in this पूछे, you session, in planned, whatever what session, how happened? can we as a owners be made accountable to whom? Not in this session, as I just threw your question, because that is the टिपिकली biggest बोर्ड्स क्रिएट किए problem. जाते हैं। Boards होते हैं। बोर्ड क्रिएट You create a board above you, board of directors जो होते हैं उनका काम ही यही है, वो to कल्चर make the business head or the CEO accountable. And ठीक है, we'll take this. You can create a virtual board. Yeah, but sometimes you may be too small to do that. नहीं may सर, not I be think viable. स्मॉल बिग की बात ही नहीं है, अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा ना, आप छोटे भी हो तो भी अकाउंटेबल होना Then you पड़ेगा। get a coach on board who will ask you the tough questions. Right? If you can't put up a board. थोड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी होगी जहाँ शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, तो वहाँ सीईओ को अकाउंटेबल बनाने के लिए बोर्ड क्रिएट किया जाता है, जहाँ मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं। We have to Family treat our businesses company like board an बना investment, के और you know, बाहर मतलब चले you have to जाते हैं treat our operations। company like one of the investments in your portfolio. Yeah. Right. So, what is strategic planning? It's a continuous and systematic process. जो मैं अभी आपको बात बता रहा था ना, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाह रहे हो, ये थोड़ी 1-2 हफ्ते में ही आ जाएगा। 10 साल से कुछ किया नहीं, आप सोच रहे हो 2 हफ्ते में सब ठीक हो जाए, राइट? कभी प्लानिंग की नहीं, कभी प्रिडिक्शन पे वर्क ही नहीं किया, कभी प्रोबेबिलिटीज निकाली नहीं, कभी प्लान वर्सेस एक्चुअल की कैलकुलेशन नहीं की। द सेम थिंग कुड हैपन फॉर योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। जो आप आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स लेते हो, आपको प्लान देना पड़ता है, बट यू ऑल्सो नो दैट मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स आर नेवर ऑन ट्रैक। It is not because it's the nature of work. We tend to blame the nature of work. काम ही ऐसा है जी। It's not true. It's just that planning is not in our discipline. We don't think it's important enough. We like to go with the flow. Right. देखी जाएगी। So what is the most common plan? देखी जाएगी। So far so good. So far so good, देखी जाएगी। चल रहा है, रब रखा। चल रहा है, चल रहा है। चल रहा है। Right? God will take care of the इंटेंट business. तो अच्छा है ना, हो जाएगा। इंटेंट तो अच्छा है तो हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। वैसे छोड़ देते हैं। Yes. You know, it dramatically reduces your probability of success. But It it also requires a lot reduces of- your speed of success. It requires a lot of brain work and This does not calm. require brain work. planning. एक्चुअली हाँ। गलती क्या होती है कि This requires हम लोग- work. we don't have a Not brain book. work. मैंने ना सर गोपाल जी में देखी थी, आनंदा में, दे हाँ हैड जी। हायर्ड अमूल वेरी सीनियर गाय, तो 2010-11 की बात है, दे हैड अ 2020 बुकलेट। सो कितनी अचीव हुई नहीं हुई ये पता नहीं, बट दे हैड अ प्लान। उस प्लान की वजह से वो बहुत मैसिव डेट्स में चले गए, तो कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बात दूसरी है, बट कंपनी हैड अ प्लान। हाँ, यू नो, सो आई Now, थिंक whether they had a plan or they had a strategy. they had a complete booklet.
सो 2020 पहुंचना है, ये हायरिंग प्लान है, ये मार्केटिंग प्लान है, ये बजट्स है, ये फाइनेंशियल प्लान है, ये हाँ, फैमिली इस प्लान पे भी है। बात करेंगे। कितने साल पहले बनाया था ये प्लान? ये 2010 में बनाया था 20 के लिए। हो ही नहीं नहीं सकता। सर, मैं इस पे मेरा क्वेश्चन है You सर। should never create a strategic plan for 10 years. सर मेरा Create क्वेश्चन a strategy for 10 years. मेरा क्वेश्चन है सर, हम हर साल Okay. एवरी ईयर Got it. ये differentiate अप्रैल करके में फॉर 2 to 3 days हम पूरा साल क्रिएट करते हैं, फ्रॉम सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, सारा कुछ पूरा प्लान Annual operating plan बोलते हो आप उसको, AOP बोलते हो, क्या बोलते हो? It's an AOP. हाँ, so Technique. yes, so वो प्लान बनाते हो। व्हाट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? सर इससे पहले जो अभी आपने उनको बोला कि वो स्ट्रैटेजिक प्लान और जो आपने Strategy और strategic plan में फर्क। हाँ वो हाँ, मुझे yes, डिफरेंशिएट Okay. Strategy अच्छा। is the context. क्या होता है कि जब स्ट्रेटजी बनाने लोग बैठते हैं ना, तो ऑब्वियसली फ्यूचर की सोचते हैं, ये तो सबको पता चली गया आजकल, राइट? तो हमें ना एक बायस होता है, मेंटल बायस। हम बहुत लीनियर थिंकिंग करते हैं और हम राउंडेड ऑफ नंबर्स में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ अस। तो अगर विजन बनाएंगे तो 2025 की, स्ट्रेटजी बनाएंगे 2030 की या 35, कोई भी 2026 नहीं बोलेगा, राइट? तो एक तो ये इशू। सेकेंडली फिर एक किताब बना देंगे बुकलेट टाइप, जैसे ये बता रहे थे कि 2030 में हम ये अचीव करेंगे, यहाँ तक तो ठीक था, बट कैसे करेंगे उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज 10 years ahead of you बहुत सारे there is massive Yeah. ambiguity, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। हो सकता है आपने जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाया है उस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत ही ना हो वो काम करने के लिए, ऑटोमेशन में और आप अभी खर्चा कर रहे हो उस चीज के ऊपर, राइट? विच इज वाई प्लानिंग एज एन एक्टिविटी ऑल्सो, पर्सनली इफ यू आस्क मी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, should not go beyond 3 years. 3 years is also an outer limit. Planning. You mean to say this end goal should not be End goal can be 5, 10, 15 years. तो सर हम लोग नहीं, कर रहे प्लान हैं। हम गोल्स और प्लानिंग में फिर अलग अलग क्या रखा था उसमें? चक्कर क्या है कि प्लानिंग आपको आज बैठ के करनी है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, Plan कि your कहाँ पर details, आप रिसोर्स लगाओगे, कैसे कहाँ क्या, करेंगे। कैसे काम करोगे, ठीक है, है ना, कितना एफर्ट कहाँ जाएगा। दैट्स ऑल प्लानिंग ना। प्लानिंग डिसाइड्स योर बजट्स कि पैसा कहाँ लगेगा, ठीक है, राइट? जो एंड ऑब्जेक्टिव है आपका, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म गोल जो आपने डिसाइड किया है 5 साल 10 साल के बाद, वो सैक्रोसैंक्ट हो सकता है कि ये डिसाइडेड है, ये नहीं चेंज कर रहा, गोल पोस्ट बार बार नहीं चेंज करेंगे, राइट? बट हाउ यू विन द मैच कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ द कॉम्पिटिशन इज रिस्पॉन्डिंग, डिपेंडिंग ऑन कि बारिश हो रही है, environmental क्या हो रहा है, factors एनवायरमेंट हैं, क्या है, external factors हैं, internal factors हैं, Right. बिल्कुल, absolutely. सो जो अच्छे जो फुटबॉल कोचेज होते हैं ना, गोल पोस्ट डिफाइंड है कि ऑब्वियसली मैच जीतना है, बट इज इट इम्पोर्टेंट कि आप 3-1 से जीतो या 5-1 से जीतो? नॉट इम्पोर्टेंट, अनलेस एंड ओनली अब वो आप फाइनल्स हो गए और पॉइंट सिस्टम्स में थोड़ी गड़बड़ है, आप पीछे चल रहे हो, आपकी एवरेज रेटिंग खराब है, राइट? द गोल इज टू विन द मैच। एंड जो अच्छे कोचेज होंगे वो क्या करेंगे, हर 10-10 मिनट का प्लान बनाएंगे। अगर 90 मिनट्स का मैच है and 10 minutes extra time है, so they will have a plan for the first 10 minutes. 30 minutes तक का प्लान होगा उनके पास, पर 10 साल का प्लान नहीं बना के चलेंगे वो। I think that is where they went wrong because hiring उसके हिसाब से कर ली, खर्चा उसके हिसाब से कर लिया। कैसे कर सकते हैं? मार्केटिंग वालों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, स्पेंड के, टीवी वालों को एडवांसेस दे दिए, और वो एक्चुअली ये नहीं होता, हम भी गलती करते हैं कि हमने एनुअल बजट कर लिया, आपने एडवर्टाइजमेंट चालू कर दी है, बट देन यू हैव टू करेक्ट इट समवेयर। Depending on एक quarter के बाद। how the competition is responding, how the environment is, एक क्वार्टर बाद आप बैठ के Not देखो। correct. So you need to have a review system. हाँ वही review system। वही 10 मिनट के बाद रिव्यू You करो need ना to have आप। a review हाँ। system. हाँ जी, I And feel then- there's a lot of analogy between the way this is and the way Google Maps operate. okay, We select a destination, we know Yes. where we are, yes, and it is every moment it is seeing कहाँ से ट्रैफिक आ रहा वो है, constantly update करता है ना plan। अपडेट कर रहा है, गूगल मैप्स प्लान ही तो बना के दे रहा है प्लान आपको, बना के दे रहा है, बट जैसे हम लोग रिव्यू कह रहे हैं कि मंथली या वो अपने आप automatic update करता है। सिचुएशन चेंज हो रही है, बारिश हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा। तक ट्रैफिक और आगे सड़कों find a faster तो route? वो उसको
Absolutely. That is what Weekly, app- monthly, Basically, quarterly. app कौन है? फास्टर तो बिजनेस नहीं आप आप तो ड्राइवर है ना आप तो ड्राइवर है ऐप है ऐप है Who are the app in the business? Right. हमारी ऐप कौन सी है? भगवंत मान है आप. राइट And the only other distinction is because Google Maps में अगर मान लो 1 घंटा दूर destination है, so it's just 1 hour away. So predictability is pretty high. Google Maps के पास ये आइडिया है कि दिल्ली में 8 से 9 बजे सुबह के बीच इतना ट्रैफिक नहीं रहता है. बहुत पुराना डेटा उसके पास है वो. That's why it's predictable plan है. सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही डेविएशन आता उसमें है. तो लाइव से दिखा रहा था ना बट अगर मान लो आप गूगल मैप को आज बोलो, जो ये कह रहे थे बुकलेट बना डालो, 10 साल बाद कितना टाइम लगेगा? 10 दिन 2 दिन बाद का बता दो आप. अच्छा कैन गूगल मैप्स प्रिडिक्ट कि 2 दिन के तो बाद फरवरी बन जाएगा। अगर मैं सुबह 8 बजे निकलूंगा तो 9 बजे पहुंचूंगा कि नहीं? नहीं कर सकता गूगल नहीं कर मैप्स. सकता कैसे करेगा? नहीं कर सकता रियल टाइम फैक्टर्स वो पास उसको थोड़ा बता देगा, रफ आइडिया दे देगा आपको. रफ आइडिया आज का देगा ना आप जब डालोगे. राइट आज करोगे तो ये है, 2 दिन के बाद नहीं मैं बता पाऊंगा. तो आज की बेसिस पे आपने परसों ट्रैवल करना था, प्लान बना बैठे हो आप, लेकिन परसों सुबह भी तो एक बार चेक करोगे खोल के कि आज की क्या दिशा है, राइट दशा और दिशा. पानी तो नहीं भरा। Yes. क्या दिशा है और क्या दशा